Hello students, welcome to NCERT exercises solution series. In the previous part of this chapter, we finished the question till 1.10. Here in this episode, we are starting from 1.11. So we have a question. A polythene piece rubbed with the wool is found to have a negative charge of this. क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? एक पॉलीथीन पीस है दैट इज रब्ड विद वूल एंड फाउंड टू हैव नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस. यानी ये नेगेटिव चार्ज किसके पास आ गया है? पॉलीथीन पीस के पास. तो हम क्या बना लेते हैं? सपोज दिस इज अ वूल एंड दिस इज पॉलीथीन पीस. वूल एंड पॉलीथीन पीस. अभी पॉलीथीन पीस के पास कितना चार्ज है? नेगेटिव ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻⁷ चार्ज है. तो बोला है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. ओके, सो डेफिनेटली इसके पास अगर नेगेटिव चार्ज आया है तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हुए होंगे? वूल से पॉलीथीन में ट्रांसफ़र हुए होंगे. दैट्स वाई द पॉलीथीन एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज. तो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र. यहाँ हमारे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होंगे. सो फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट करने के लिए व्हाट कैन वी डू? We know the number of electron transfer. We can use the formula Q is equals to NE. So Q by E is equals to N. This way we can find the number of electron transfer. So Q क्या है हमारे पास? 3 into 10⁻⁻⁷, and we know the electronic charge is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. So if we just simplify this, we get approx 1.87 into 10⁻12. Okay, so here we can consider that the number of electrons equals to 2 into 10⁻12. Okay, so here we even can say that the quantization of charge violates because here the number of electron is too large. So we can write approximately it is equals to 2 into 10⁻12. हम ऐसा बोल सकते हैं. तो ये तो बात हो गई कि वूल से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए. कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए? अप्रॉक्सीमेट 2 into 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए. अब पूछा है क्या उसका मास भी ट्रांसफ़र होगा? Is the transfer of mass from wool to polythene? तो देख लेते हैं. इफ़ द चार्जेस इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं एंड वी नो दैट एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है. तो जब यहाँ से यहाँ पे इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं तो कुछ मास भी यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र होगा. सो हम द मास, सो हम इन बी पार्ट वी कैन से यस द मास will transfer. Okay, हम कह सकते हैं कि mass will also transfer. ठीक है, from wool to polythene. So हम लिख सकते हैं from wool to polythene some mass will also transfer. तो कितना mass transfer होगा? The mass that polythene bag acquire will be number of electron into mass of each electron. तो एक इलेक्ट्रॉन इतना मास कैरी करता है और इतने सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए तो उतना मास जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन टेक 2 into 10⁻12 and this is -31. So if we multiply this क्या मिलेगा हमें? 18.2 into 10⁻⁻19 coulomb, or we in standard form we can write it 10⁻⁻19 not coulomb kg. मतलब कितना होगा? this much amount of mass will transfer from wool to polythene. लेकिन हम ये बोल सकते हैं yes mass will transfer but very negligible amount of mass will transfer because the value is too small. So this way we can solve this question. Question 1.12. Question में बोला है two insulated charged copper sphere A and B and their center are separated by a distance of 50 centimeter. हमारे पास है दो spheres A and B
and their centers are separated by a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of attraction, force of repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 raised to power minus 7. अच्छा, इस पर चार्ज कितना है? The charge on this sphere is 6.5 into 10 raised to power minus 7. Here also the charge is 6.7 into 10 raised to power minus 6.5 10 raised to power minus 7 coulomb. Radii of both A and B is negligible as compared to the distance of separation between them, that is given. So हमें बताना है what is the force of electrostatic repulsion. हमें electrostatic repulsion बताना है. So हमारे पास फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by R square. This way just we find the magnitude of the force. दो चार्जेस के बीच का फोर्स, इसका वैल्यू है हमारे पास 9 into 10 raised to power 9. Q1 is 6.5 into 10 raised to power minus 7. Q2 is 6.5 into 10 raised to power minus 7. And distance दोनों के बीच में क्या है? 50 centimeter. That I need to convert into meter. So if you simplify this, you will get how much? You will get 1.5 into approx 1.5 10 raised to power minus 2 Newton. That much you got when you simplify this. Okay. Now, अब हमें क्या calculate करना है? What is the force of repulsion if each sphere is charged double? अब बोला गया है क्वेश्चन में, अगर दोनों का चार्ज हम डबल कर दे एंड उनके बीच का डिस्टेंस हाफ कर दे. चार्जेस डबल मतलब ये कितना हो जाएगा? 13 into 10 raised to power minus 7, 13 10 raised to power minus 7 and the distance becomes 25 centimeter. सो देखिए यहाँ पे बिना पुट किए ही हम करते हैं. न्यू फोर्स हमारा कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन. चार्जेस जो है वो Q1 डैश Q2 डैश ऐसे ले सकते हैं एंड डिस्टेंस R2 डैश न्यू फोर्स. ओके, तो यहाँ पर मैं कैसे पुट कर सकती हूँ? F डैश इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन. Q1 को क्या कर रहे हैं? 2Q1 कर रहे हैं. Q2 को भी 2Q1 कर रहे हैं एंड जो डिस्टेंस है उसको क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हाफ कर रहे हैं. सो हेयर हमारे पास क्या मिलेगा हमें? 2 into 2 4 और वो 2 का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4. तो 2 into 2 4 and 4 and 4 16 into 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by R स्क्वायर. ये हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो आई हैव कैलकुलेट. इसकी ये क्या है? दिस इज माई व्हाट? दिस इज माई एफ. तो मैं कह सकती हूँ द न्यू फोर्स बिकम 16 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल फोर्स. तो इफ़ यू जस्ट मल्टीप्लाई दिस तो क्या मिल जाएगा? 16 into 1.5 into 10 raised to power minus 2. That is how much? You will multiply, then you will get how much? 0.24 Newton. That is the new force of repulsion between the two charged particles. So start करते हैं question 1.13. Suppose the spheres A and B in एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1.12. ये हमारा 1.13 है. सो एक्सरसाइज प्रॉब्लम जो हमने इससे प्रीवियस जस्ट किया था 1.12 में, हैव टू आइडेंटिकल साइजेस स्फीयर्स हैं. ठीक है, तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में? हमारे पास क्या है? 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं. बहुत ध्यान से देखिए इसमें कॉन्सेप्ट जो यूज़ हो रहा है. 2 आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं A एंड B. ओके, उसके बाद क्या हुआ है इस क्वेश्चन में? अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज बॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट. ओके, तो अभी क्या है? ये फर्स्ट स्फीयर है और एक थर्ड स्फीयर जो कि ये अनचार्ज्ड है. ओके, दिस इज द फर्स्ट स्फीयर एंड दिस इज योर थर्ड स्फीयर. सो ये हमारा अनचार्ज इसके कांटेक्ट में आ गया. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इस पे चार्ज जो था स्टार्टिंग में Q और Q था दोनों पे. अच्छा,
अभी इन दोनों के साइज सेम है, लेकिन ये इस पर चार्ज Q है और ये अनचार्ज्ड है। सो जब ये दोनों पास आएंगे और दोनों के साइजेस सेम हैं, देन जो इनके चार्जेस होंगे वो इक्वली शेयर होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब ये दोनों बॉडीज़ जब अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है, जब ये दोनों बॉडी कांटेक्ट में आने के बाद जब दोनों बॉडीज़ हमारी अलग अलग हो जाएंगी, तो इस पे चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, हमारा Q/2, और इस पे भी चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, Q/2 चार्ज हो जाएगा। ओके, दोनों पे चार्ज हमारा क्या क्या हो जाएगा, Q/2। सो यहाँ तक का सिनेरियो क्लियर है कि दो बॉडीज़ हैं हमारे पास, दोनों के पास चार्ज Q है, एंड देन ए और एक थर्ड बॉडी जो है वो ए के कांटेक्ट में आ गई। ए के कांटेक्ट में आने के बाद दोनों सेपरेट हो गए, क्योंकि दोनों के साइज सेम थे तो चार्ज हमारा इक्वली शेयर हो गया। तो इसके पास भी चार्ज Q/2 आ गया, इसके पास भी चार्ज Q/2 आ गया। अब क्या बोल रहे हैं ये लोग, ओके, a third sphere of same side but uncharged is brought in contact with the first and then brought in contact with the second। अब इस चार्ज को, इस C को उठा के किसके कांटेक्ट में लेकर आए हैं, B के कांटेक्ट में लेकर आ रहे हैं। तो चलो कर लेते हैं एक बारी। C को किसके कांटेक्ट में लेकर आ रहे हैं, अब B के कांटेक्ट में लेकर आ रहे हैं। तो C पे हमारा कितना चार्ज है, ये C हो गया हमारा, एंड दिस इज B। तो C पे हमारा क्या चार्ज है, C पे हमारा Q/2। अब ये अनचार्ज नहीं है पहले की तरह, क्योंकि जब ये इसके साथ कांटेक्ट में आया, नाउ C के पास हमारे पास चार्ज Q/2 है, एंड B के पास जो है चार्ज क्या था, Q था। तो जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, देन क्योंकि इनके साइजेस सेम हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, तो चार्ज इक्वली शेयर हो जाएगा। तो देखो इनका टोटल चार्ज कितना होगा, Q/2 एंड Q, 3/2Q, ओके, 1.5Q और 3/2Q। तो जब वो इक्वली शेयर होगा 3/2Q चार्ज, तो दोनों को हाफ हाफ चार्ज मिलेगा। तो जब दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो हमारे पास जो चार्ज रह जाएगा, इसके बाद का सिनेरियो मैं इधर बना रही हूँ आपका। जब ये दोनों अलग हो जाएंगे, C और B जो हैं ये दोनों अलग हो जाएंगे, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, 3Q/4 एंड 3Q/4, राइट। मैंने करना क्या है, इन पे चार्ज क्या था हमारा, Q और 0 था। कुछ नहीं करना है, इन दोनों का सम करके मीन ले लेना है। जैसे इस पे Q चार्ज था, इस पे कुछ चार्ज नहीं था, तो दोनों का हमने सम किया Q+0/2, ओके, तो Q/2। अब यहाँ पे भी C के पास अभी क्या है, प्रेजेंट टाइम पे Q/2 चार्ज है, और B के पास तो Q चार्ज था। तो जब ये दोनों कांटेक्ट में आए और जब सेपरेट हो जाएंगे तो इनका चार्ज इक्वली शेयर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इनका पहले आप सम करेंगे, सम क्या हो गया, 3/2Q, और उसका हाफ करेंगे, तो 3Q/4 जो है B पे, C पे और B पे चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो और बाद में क्या बोला है, फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ। उसके बाद इस बचे हुए C को हमने निकाल के हटा दिया कि भाई तू अब जा। अब हमारे पास क्या बच गया, फिर से A और B बच गया। तो A पे जो है न्यू चार्ज जो है, A पे अब न्यू चार्ज कितना है हमारे पास, Q/2, और B पे जो न्यू चार्ज है वो हमारा कितना बचा, 3Q/4। आप ऐसे भी शो कर सकते हैं एग्जाम में, एंड यू कैन इवन राइट थ्रू वर्डिंग्स कि सिंस द टू बॉडीज हैव इक्वल साइज, सो चार्ज दे शेयर द इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप शो कर सकते हैं। तो दिस इज योर फर्स्ट सिनेरियो, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन, दिस इज द फोर्थ वन, एंड लास्ट में ये फिफ्थ आ गया। तो हम लास्ट वाले में देखेंगे A के पास Q/2 चार्ज बचा है और B के पास 3Q/4 चार्ज बचा है, ओके। हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हमारे पास जो फोर्स हमें निकालना है, 1/4 πε0 QA QB/R²।
ये हो जाएगा हमारा, सो F इज इक्वल्स टू जो हमारा न्यू फोर्स निकलेगा, सो F डैश ले लेते हैं इसको, so that will be 1 by 4 pi epsilon naught. What is your QA? Q by 2. What is your QB? 3Q by 4 by R square. तो ये आ जाएगा मेरा 3 by 8 into 1 by 4 pi epsilon naught Q square. Q सेम है ना, Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। और ये जो है मेरा ये कौन सा फोर्स का वैल्यू है, जो मैंने जस्ट इससे प्रीवियस क्वेश्चन में फोर्स का वैल्यू निकाला था। तो वो फोर्स का वैल्यू आप पुट कर देंगे, और अगर नहीं गिवन है तो इवन यू कैन लीव योर आंसर टिल दिस स्टेप ओनली, कि इस तरह से हमारा जो ओरिजिनल फोर्स जो भी रहा होगा उनके बीच का, उसका 3/8 टाइम्स हो जाएगा। सो ओरिजिनल फोर्स की जो वैल्यू थी वो हमने कितनी निकाली थी प्रीवियस क्वेश्चन में, ये मैं डेटा वहाँ से ही ले रही हूँ। तो हम जब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो हेयर यू विल गेट अप्रॉक्सीमेट 5.7 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। तो ये हमारा जो है न्यू फोर्स आ जाएगा, दैट इज 3/8 टाइम्स ऑफ दिस फोर्स। हेयर यू विल गेट अप्रॉक्स आई थिंक 5.62 और समथिंग, तो इवन यू कैन राउंड ऑफ दिस टू 5.7, ठीक है। तो जो भी आएगा आप चेक कर लेना कैलकुलेशन के बाद, तो यू विल गेट दैट आंसर। सो दैट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन A एंड B। सो क्वेश्चन 1.14 देखते हैं। यहाँ बोला एक फिगर बनी हुई है, हो सकता है मेरी ये फिगर जो है वो प्रॉपर लेवल नहीं हो, तो आप अपने टेक्स्ट बुक को क्रॉस चेक कर सकते हैं प्रॉपर फिगर के लिए। So here you will get the general idea how to solve this question. तो shows that the 3 charge particle, इसमें 3 charge particles जो हैं वो बनाए हुए हैं, particle 1, 2 and 3 particles हैं, okay, in a uniform electrostatic field, in uniform electrostatic give the sign of the 3 charges। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, ओके और हमें ये तीनों चार्जेस का क्या बताना है, साइन बताना है कि वेदर दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दैट वी जस्ट हैव टू फाइंड हियर इन द क्वेश्चन। और हमें साथ में बताना है विच पार्टिकल हैज़ हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, Q/E जो है इन तीनों में से सबसे ज़्यादा किसका होगा। सो हम किस बेसिस पे पता लगा सकते हैं, ये डिफ्लेक्शन के बेसिस पे हम ये सारी चीज़ें जो हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है, हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल 1 and 2 दैट इज़ डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसलिए हम ये बोल सकते हैं चार्ज पार्टिकल जो है A1 and 2, the charge particle 1 and 2 carry negative charges, ओके दैट कैरी द नेगेटिव चार्जेस। इसका हम रीज़न क्या देंगे, क्योंकि ये दे आर डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, ये दोनों पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब ये इनके ऊपर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो ए पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, सॉरी फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव, सेकेंड पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड द चार्ज ऑन थर्ड पार्टिकल, तो वो हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं, द थर्ड पार्टिकल इज डिफ्लेक्टिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। तो जो पार्टिकल 3 होगा, चार्ज पार्टिकल 3 carry positive charge. Why it carry positive charge? Because the reason is because it is deflecting towards the negative plate. तो आप ये आंसर्स लिख सकते हैं इन दोनों का रीजंस के साथ। फर्स्ट सेकेंड, तो हमें क्या पता चल गया, फर्स्ट के ऊपर पॉजिटिव, सेकेंड के ऊपर पॉजिटिव, फर्स्ट पे नेगेटिव, सेकेंड पे नेगेटिव एंड थर्ड पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, चार्ज मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो फाइंड करना है। तो देखिए वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, E/m। सो मुझे करना होगा कि जो मेरा E/m रेशियो है वो किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, ओके। सो अगर मैं निकालूंगी एक्सेलरेशन
of particle along y-axis, so the acceleration of the charged particle along y-axis A is equals to F upon m. Okay, so F क्या होता है हमारा, that is QE by m. Okay, so ये हमारा acceleration आ गया. Now I am going to find the डिफ्लैक्शन अलोंग द वाई एक्सिस, मीन्स कितना डिफ्लैक्शन होगा अलोंग द वाई एक्सिस अगर इस चार्ज पार्टिकल के बारे में लेते हैं. सो दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल अलोंग द वाई एक्सिस, और डिफ्लेक्शन अलोंग द वाई एक्सिस कितना होगा हर पार्टिकल के लिए. सो लेट टी इज द टाइम टेकन बाय the particle to cross the इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर सपोज करते हैं हम यहाँ से यहाँ आने में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करने पे उसे टी टाइम लगता है, देन डिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, इफ वाई इज द डिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, तो हम वो क्या कह सकते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 0, देन डिफ्लेक्शन विल बी ए टी स्क्वायर. सो यहाँ पर हमारा y इज इक्वल्स टू हाफ, एक्सेलरेशन का वैल्यू है हमारे पास क्यू ई बाय एम इंटू टी स्क्वायर. सो वी कैन से डिफ्लेक्शन जो है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा q बाय एम रेशो. सो q बाय एम रेशो उसका ही ज़्यादा होगा जिसका हमारा डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है वो पार्टिकल 3 का हाईएस्ट है, इसलिए q बाय m ratio is highest for particle 3. Q by m ratio highest for particle 3 as deflection is highest in दिस पार्टिकल. ये आपको डायग्राम के थ्रू ही देख के दिखाई पड़ेगा कि डिफ्लेक्शन जो है वो किस में ज़्यादा हो रहा है. सो ये आपको प्रॉपर उससे पता चलेगा. सो डिफ्लेक्शन जिसका ज़्यादा होगा उसका क्यू बाय एम रेशियो ज़्यादा होगा. सो क्यू बाय एम रेशियो हमारा किसका ज़्यादा होगा, वी कैन से द पार्टिकल 3 हैज़ हाईएस्ट चार्ज बाय मास रेशियो. क्वेश्चन है हमारा 1.15. कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 3 into 10 to the power 3 I Newton per coulomb. What is the flux of this field through the square of 10 centimeter on side whose plane is parallel to the YZ plane? So here electric field is given. ठीक है. So पहले मैं axis draw कर लेती हूँ. Here is my x-axis, y-axis and this is suppose my z-axis. Okay, this is given. अब हमें बोला है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है that is along the x-axis. इलेक्ट्रिक फील्ड इज along the x-axis. हमें क्या बोला है, एक हमारे पास स्क्वायर है. What is the flux of this field through the square of 10 centimeter on side whose plane is parallel to YZ plane. So हम पे पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है E डॉट S और सिंपली E डॉट डी एस, E डॉट एस. सो E हमें पता है दैट इज अलॉन्ग द एक्स एक्सिस. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड द एरिया. सो हेयर जो स्क्वायर जो लेना है वो हमारा किसके पैरेलल है, वाई जेड प्लेन के पैरेलल है. सो इट इज़ लाइक दैट कि वो हमारा ये हमारा वाई जेड प्लेन हो गया. एंड आपको इस तरह से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि 3D पिक्चर में कि वो वाई जेड प्लेन के जो हमारा दो स्क्वायर है दैट इज़ पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन. ओके, सो दैट इज़ पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन. सो अगर ये वाई जेड प्लेन के पैरेलल होगा तो इसका जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल दैट नॉर्मल विल बी अलोंग द एक्स एक्सिस. सो वाई जेड प्लेन की अगर वो पैरेलल है देन नॉर्मल गोज अलोंग द एक्स एक्सिस. सो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर. सो 10 into 10 raised to power -2
whole square. So that is the area, and that is area vector is also the normal जो vector है, the normal vector that is also along the x axis. तो अगर हम ये values यहाँ पर put करेंगे तो हमारे पास E क्या है, 3 into 10 raised to power 3 I dot 10 into 10 raised to power minus 2 square dot I. ओके, सो यहाँ पे मेरा क्या मिल जाएगा मुझे, हेयर आई विल गेट 10 to power -1, तो 10 to power -2 मिलेगा, एंड ये 10 to power -2 इंटू 10 to power 3 दैट इज़ हाउ मच 10. सो आई विल गेट 30, आई डॉट आई मेरा 1 होता है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर. सो ये मेरा क्या मिल जाएगा, फ्लक्स. कौन सा फ्लक्स, हमारा इस स्क्वायर जो है, इस स्क्वायर जो साइड 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, एंड दैट इज पैरेलल टू वाई जेड प्लेन. तो हमारा इतना फ्लक्स होगा, ठीक है, इस फील्ड के वजह से. अब हमें बी में क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर. इस स्क्वायर के लिए हमने जब वो स्क्वायर वाई जेड प्लेन के पैरेलल था तब हमने क्या निकाला, फील्ड निकाल दिया, सॉरी फ्लक्स निकाल दिया. लेकिन अब बोला है वो स्क्वायर जो है दैट मेक्स एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस. तो यहाँ पर जो फ्लक्स हम लेंगे वो ई डॉट एस, लेकिन यहाँ पर हमारा जो ई हम क्या ले सकते हैं, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, द नॉर्मल वेक्टर जो है हमारा इसमें, ये जो है हम जो एंगल लेते हैं, ये दोनों, द थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अभी नॉर्मल वेक्टर जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या एंगल है, 60 डिग्री. सो ई का मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, एंड एरिया कितना है हमारा, 10 रेज़ टू पावर -1. तो 10 रेज़ टू पावर -1 स्क्वायर विल बी 10 रेज़ टू पावर -2 cos 60. ठीक है, 10 रेज़ टू पावर -2, सॉरी. सो हेयर व्हाट आई गेट, here I get 30, ठीक है, into 1/2 which is equals to 50 Newton per coulomb meter square. So here we have finished the question till 1.15. From question 1.16 you will learn in our next part. So keep practicing.